اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ یا کوئی بھی مجھ پر اگر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا میری بات دھیان سے سنو. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں. اور اگر کوئی 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے 100 گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اگر کوئی 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں. 10 کے حساب سے لگا لو. اب گناہ کسے کہتے ہیں؟ آئیے سمجھتے ہیں گناہ کسے کہتے ہیں. جو چیز اللہ نے منع کیا ہے اس کام کو میں نے کر دیا تو وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور ہم نے جھوٹ بول دیا تو وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ، اے بیٹا ادھر دھیان دو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور اللہ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب کوئی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور یہاں پہ ہم لوگ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، کسی ملا سے ڈر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب سچ بولنا کیا ہوا؟ فرض ہوا نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا نا، اللہ جو کہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض. اور نبی جو کہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت. بات سمجھ آ رہی کچھ؟ ہاں، اسی لیے وضو میں پہلے سنت ہے، بعد میں فرض ہے. کیونکہ فرض کی بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، سنت پہلے ضروری کرنا پڑتا ہے. اب یہاں سمجھیے، آئیے سمجھتے ہیں نا. کنانا عدوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں. عثمان غنی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو ابھی بات بتائیے، بندے کے ساتھ کا مطلب بندہ کسے؟ کیا مسلمان؟ نہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی کو تو کہیں گے بندے نا. مطلب یا رسول اللہ جو ہندو ہوتا ہے اس کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ جو مسلمان ہوتا ہے اس کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ جو عیسائی ہوتا ہے اس کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ مطلب یا رسول اللہ ایک بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، آپ کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک فرشتہ تمہارے دائیں جانب رہتا ہے، ایک فرشتہ تمہارے داہنے طرف ادھر رہتا ہے، اور دوسرا فرشتہ تمہارے بائیں طرف رہتا ہے. جو تم اچھا کام کرتے ہو وہ دایاں فرشتہ لکھتا ہے، جو تم اچھا کام کرتے ہو وہ دایاں فرشتہ لکھتا ہے، اور جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو وہ بایاں فرشتہ لکھتا ہے. اگر تم نے گناہ کر دیا تو دائیں فرشتے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہارے گناہ کو لکھ سکے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی صرف نیکی لکھنا ہے. اور اگر تم نے گناہ کر دیا اور تم نے اگر نیکی کر دیا تو بایاں والا فرشتہ نہیں لکھے گا. اس کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ بایاں والا فرشتہ نیکی لکھے، کیونکہ بایاں والا فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ نیکی لکھنے پر نہیں بلکہ گناہ لکھنے پر مامور ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں استنجا لیتے ہیں تو اپنے داہنے ہاتھ کا استعمال نہیں کرتے، بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بیت الخلاء میں جاتے وقت کیا ہوتا ہے؟ ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، اور گناہوں کو کون لکھتا ہے؟ بایاں والا. اسی لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں نا. اور جب کسی کو لینا ہو یا کسی کو کوئی چیز ہم دیتے ہیں تو کس ہاتھ سے دیتے ہیں؟ داہنے ہاتھ سے. مطلب کسی کو دینا گناہ ہے کہ نیکی ہے؟ نیکی ہے، اسی لیے داہنے ہاتھ سے دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کچھ؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ تمہارے دائیں جانب تمہاری نیکی لکھتا ہے اور بائیں جانب والا فرشتہ تمہارے جو ہے گناہ لکھتا ہے. جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اللہ اکبر. اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو فرشتہ 10 نیکی لکھتا ہے. اگر ہم نے ایک بار کہہ دیا سبحان اللہ تو ہماری نیکی کتنی ہو جائے گی؟ 10 نیکیاں ہو جائیں گی. پڑھے کتنی بار؟ ایک ہی بار نا. اور نیکی کتنی بار لکھی گئی؟ 10 نیکیاں. اچھا یہ جو نیکیاں جو لکھتے ہیں فرشتے تو کیا یہ کاغذ قلم سے لکھتے ہیں؟ اب بھائی فرشتوں کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے لکھتے ہوئے، تو فرشتے جو لکھتے ہیں کیا وہ کاغذ قلم سے نیکیاں لکھتے ہیں؟
जाहिर सी बात है, हम लोग भाई हम किसी से भैया कितना पैसा हुआ, हाँ इतना पैसा हुआ, लिख दीजिए। जब हम कहेंगे उससे लिख दीजिए तो वो क्या करेगा, कागज उठाएगा, पेन उठाएगा, लिख देगा। और यहाँ पे भी अल्लाह क्या कह रहा है कि अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि फरिश्ते लिखते हैं, इसका मतलब वो भी कागज और कलम का इस्तेमाल करते होंगे तभी ना। हाँ, कागज और कलम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ना वो कागज हमको दिखाई देती है और ना वो कलम हमको दिखाई देता है, और लिखने वाला वो फरिश्ता भी नहीं दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है कुछ? बात समझ में आ रही कुछ? जन्नत इस वक्त है ना, दिखाई देती है। जहन्नम बन के तैयार हो गया है ना, दिखाई देता है। जिन्नात लगे रहते हैं ना सबके साथ, दिखाई देते हैं। अल्लाह है कि नहीं, दिखाई देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में आराम कर रहे हैं कि नहीं, दिखाई दे रहे हैं? नहीं। फरिश्ते हमारे आमने सामने, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे रहते हैं कि नहीं, दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब जो चीज दिखाई नहीं देती है, जो चीज दिखाई नहीं देती है वो हक है, वो है, वो हकीकत में है। और जो चीज दिखाई दे रही है उसको एक दिन मिट जाना है, उसको एक दिन मिट जाना है। तभी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया छोड़ के क्यों गए? क्योंकि वो उस वक्त दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो उस वक्त दिखाई दे रहे थे। अल्लाह हमको दिखाई देता है नहीं ना, इसीलिए तो अल्लाह है। ये हमको दिखाई दे रहा है ना, एक दिन ये खत्म हो जाएगा ना। तो जो चीज दिखाई देती है आंखों से वो एक दिन मिट जाएगी, और जो चीज दिखाई नहीं देती है वो एक दिन मिटेगी नहीं, वो हमेशा रहेगी। इसीलिए अब नेकियां जो हमने किया है, नेकियां दिखाई देती है। हमने किसी को क्या कह दिया, हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो ये नेकी है ना। तो जो मैंने मुंह से बोला अस्सलाम वालेकुम, तो ये अस्सलाम वालेकुम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम, उसके मुंह से जो निकला वालेकुम सलाम, ये दिखाई दे रहा है? नहीं ना। इसका मतलब जो चीज नहीं दिखाई दे रही है वो मिटेगी नहीं, वो मिटेगी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो अस्सलाम वालेकुम जो कहा वो फरिश्ते ने सुन लिया, इस वाले फरिश्ते ने सुन लिया, दाहिने हाथ के फरिश्ते ने सुन लिया, या दाएं तरफ का फरिश्ता ने सुन लिया। अब वो सुन करके उसको तुरंत नोट करेगा, नोट करेगा कि हाँ फला ने सलाम किया। फिर उसके बाद फिर वो सलाम का जवाब देगा वालेकुम सलाम। अब उसका फरिश्ता, मेरा फरिश्ता मेरे पास, उसका फरिश्ता उसके पास, समझ रही हो? तो अब उसका फरिश्ता जो है क्या हुआ, उसका फरिश्ता क्या करेगा, वो भी नोट करेगा। अब दोनों फरिश्ते, उस वाले आदमी का भी फरिश्ता और मेरा भी फरिश्ता, दोनों जाएंगे अल्लाह की बारगाह में और कहेंगे असर की नमाज के बाद, ए अल्लाह तेरे बंदे ने सलाम किया था, उसका नाम शहादत है, और तेरे दूसरे बंदे ने जवाब दिया, उसका नाम शादाब है। तो अब अल्लाह नाम के साथ लिखेगा, बाकायदा नाम के साथ लिखता है, वो लिखता है शहादत ने ये सलाम किया, शादाब ने जवाब दिया, इस तरह से लिखाता है। अब हम लोग मर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, महशर के मैदान में जाएंगे, कयामत के दिन जाएंगे, और जाने के बाद सबका हिसाब किताब होगा। तो सबका पन्ना खुलेगा, फिजा ने क्या काम किया था, तकद्दुस ने क्या काम किया था, सिफत ने क्या काम किया था, शिफा ने क्या काम किया था, सबका नाम के साथ लिखा जाएगा। शहादत ने क्या क्या किया था, शादाब ने क्या क्या किया था, ये फला 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 ये क्या काम किया था, सबके रजिस्टर लिखे जाएंगे, सबके रजिस्टर को खोला जाएगा और उसमें फिर आ जाएगा, हाँ ये भी पता चलेगा कि इतने बज के इतने मिनट पर शहादत ने सलाम किया था और शादाब ने जवाब दिया था। इसका मतलब जो हम सलाम करते हैं या जो हमें जवाब मिलता है वो चीज मिटती नहीं है। अब एक बात और सुने, जब हम खड़े रहते हैं तो हमारे जो दो फरिश्ते होते हैं, दाहिने और बाएं वाले फरिश्ते हैं, तो जब हम खड़े रहते हैं तो एक फरिश्ता दाएं हो जाता है और एक फरिश्ता बाएं हो जाता है। जब हम बैठ जाते हैं तो दाहिने वाला फरिश्ता आगे आ जाता है और बाएं वाला फरिश्ता पीछे हो जाता है। और जब हम लेट जाते हैं तो दाहिने वाला फरिश्ता सर के पास आ जाता है और बाएं वाला फरिश्ता पैर के पास आ जाता है। बात समझ आ रही कुछ? जब हम खड़े रहते हैं तो ये फरिश्ते भी खड़े रहते हैं, जब हम बैठ जाते हैं तो ये फरिश्ते भी बैठ जाते हैं, जब हम लेट जाते हैं तो ये फरिश्ते भी लेट जाते हैं, और जब कोई लेट जाता है तो फिर सो जाता है ना। तो रात भर वो दोनों फरिश्ते, एक सर के पास रहता है और एक पैर के पास रहता है, दोनों फरिश्ते मिल करके उस इंसान की हिफाजत करते हैं रात भर। कहीं सांप न डस ले, कहीं बिच्छू न काट ले, हिफाजत करते हैं। बात समझ में आ रही कुछ? वो फरिश्ते हिफाजत करते हैं। अब मान लो यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोग हैं, और एक लोग पे कितने फरिश्ते हैं? 2 फरिश्ते, तो 14 पे 28। इसका मतलब इस रूम में 28 फरिश्ते हैं। इसका मतलब इस रूम में कितने फरिश्ते हैं? 28 फरिश्ते हैं, और 2 फरिश्ते उधर आंगन में हैं बावनों के पास, और 2 फरिश्ते उधर हैं उस वाले घर में हमारी अम्मा के पास। बात समझ आ रही कुछ?
जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ 2 फरिश्ते भी आते हैं, समझ रही हो? अब यहां से समझो। और बाएं जाने वाले फरिश्ते, जब तुम एक नेकी करते हो तो उसकी 10 नेकियां लिखी जाती है, और जब तुम एक बुराई करते हो तो बाएं जाने वाला फरिश्ता दाएं जाने वाले फरिश्ते से पूछता है मैं लिख लूं? ध्यान से सुनो बेटा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जब तुम नेकी करते हो तो 10 नेकियां लिखी जाती है, लेकिन जब तुम बुराई करते हो तो एक ही बुराई लिखी जाती है, 10 नहीं लिखा जाता। कितना अच्छा, कितना रहमानुर रहीम है परवरदिगार आलम। अच्छा, एक सवाल और बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। अल्लाह मुसलमानों का रब है कि हिंदुओं का, ईसाइयों का, पंजाबियों का, सिख का, अंग्रेजों का, सबका रब है? सबका रब है, मुसलमानों का ही रब नहीं है। अगर अल्लाह मुसलमानों का रब होता, अल्लाह मुसलमानों का रब होता तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन होता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं होता। आप लोग सूरह फातिहा पढ़ती हैं तो उसमें क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन, हाँ, आलमीन सारे आलम का रब है। अब सारे आलम में हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, है ना, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, पंजाबी भी हैं, नसरानी भी हैं, यहूदी भी हैं, काफिर भी हैं, और सुनो आदिवासी भी हैं, बहुत से लोग हैं ना, वो सब आलमीन में है। इसका मतलब अल्लाह काफिरों का भी रब है, मुसलमानों का तो है ही, सबका रब है। अच्छा, आप यहां समझते हैं रब किसे कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब किसे कहते हैं? रुक जा एक मिनट, रब किसे कहते हैं समझ लो बेटा। रब का मतलब क्या होता है? रब का मतलब क्या होता है? खिला के पिला के पालने वाला, खिला के पिला के पालने वाला, ठीक है? अच्छा, तो हमारे बाप कमाते हैं, वो हमको खिलाते हैं और हमको पिलाते हैं, तो क्या वो हमारे रब हैं? है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी किसी से मांग के हमको खिला रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। बात समझ आ रही कुछ? हाँ, बात समझ आ रही है कुछ, है ना? वो भी किसी से मांग कर हमको खिला रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। याद आया कुछ? वो जो समोसा वाला याद आया? उसने कहा अगर तुम्हारा खुदा अगर दे सकता है तो ठीक है, मैं 2 समोसा मांगता हूँ, देखता हूँ कि 2 समोसा मुझे देता है कि नहीं देता है। वो आराम से, तो उसने मुसलमान ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे खुदा का इम्तहान लेना चाहते हो, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुमको अल्लाह का इम्तहान लेना है, तुमको अल्लाह से दुआ मांगना है ना, तो तुमको रोड पे बैठ करके हाथ उठा के दुआ करना होगा। बात समझ आ रही कुछ? वो जाकर हाथ उठा करके आंख बंद करके बस इतना करे, अल्लाह मुझे समोसा दे दे। उधर से एक फकीर आ रहा था, वो समोसा लिया हुआ था, और सोचा कि इस बेचारा ये भीख मांग रहा है, तो फकीर ही जो है उसके हाथ में समोसा डाल दिया। और जब वो आंख खोला तो अरे हाँ, तुम्हारे अल्लाह ने तो मुझे समोसा दे दिया, अरे तुम तो सही कह रहे थे। तो बेटा, अल्लाह आ करके डायरेक्ट किसी को देता नहीं है, बल्कि किसी का वसीला लगा के देता है, किसी से भेजता है। पानी डायरेक्ट नहीं आता है, पानी जमीन से पहले हैंड पंप गाड़ेंगे या टोटी चालू करेंगे तब पानी आता है। वसाइल का होना बहुत जरूरी है ना बेटा? वसीले का होना बहुत जरूरी है। अब आगे समझिए। हाँ, जब हम नेकी करते हैं तो अल्लाह 10 नेकी लिख देता है, लेकिन जब बुराई करते हैं तो एक ही बुराई लिखता है, एक ही बुराई लिखता है। और यहाँ पे वो जो नेकी वाला, जो बुराई वाला फरिश्ता है, जो बुराई लिखता है, वो नेकी वाले फरिश्ते से पूछता है लिख लूं? वो लिखना ही नहीं चाहता ना बुराई। ये जो बाया वाला फरिश्ता होता है वो लिखना ही नहीं चाहता बुराई। वो सोचता है कि मेरे पास जो है लिस्ट कम आए, बुराई की लिस्ट कम आए, क्योंकि उसी को लेके जाना है ना। वो जितनी नेकियां करते हैं वो सब वजन हो जाता है, भारी हो जाता है, तो फरिश्ते कैसे लेके जाएंगे? इसके पास ढेर नेकियों का वजन है, अब ये नेकियों को उठा के लेके जाएगा, इसके पास बुराई का वजन है, बुराई का पूरा वजन है, भार है, उठा के लेके जाएगा। तो ये सब क्या है? नेकियां और बुराइयों को वो फर्क करने की चीज है, समझ रही है? तो वो कहता है मैं लिख लूं, समझ रही हो? तो फिर मालूम है क्या है? देखो आगे, वो कहता है मैं लिख लूं, तो दाएं वाला फरिश्ता कहता है नहीं, हो सकता है कि जिसने गुनाह किया है वो तौबा कर ले। आए है, दाएं वाला फरिश्ता क्या कहता है? नहीं, हो सकता है कि अभी जिसने ये गुनाह किया है, जिसके बारे में तुम लिखने जा रहे हो सकता है कि इस्तगफार तौबा कर ले, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले। समझ रही हो? जब वो 3 मरतबा पूछता है लिख लूं,
और जब वो 3 मरतबा में जब वो अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़ता है, तब दाएं वाला कहता है हाँ लिख लो। इसका मतलब बेटा गुनाह करने के बाद भी हमको मौका मिलता है तौबा करने का, लेकिन हाय अफसोस हम तौबा नहीं करते हैं, इस्तगफार नहीं पढ़ते हैं। और एक बात और सुन लो बेटा, अगर किसी के घर में रोजी रोटी नहीं आ रही है तो 5वां कलमा इस्तगफार खूब पढ़ा करो, रोजी रोटी आना शुरू हो जाएगी। और अगर कोई चाहता है कि मैं मालदार हो जाऊं, बहुत ज्यादा मेरे घर में दौलत हो जाए, पैसे हो जाएं, तो 500 मरतबा दिन भर में 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, 500 मरतबा रोजाना पढ़ो। नहीं पढ़ने वाले 1-1 लाख। अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अपनी पूरी जिंदगी में 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ा था, तभी तो उनका आज तराना मशहूर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वही तो लिखे हैं, अल्लामा इकबाल ही तो लिखे हैं। भी वली थे। हाँ अरे क्या पूछना है, अल्लाह के वली हैं भाई, समझ रही हो। अच्छा सारा दाढ़ी नहीं रखे थे, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो सुन्नत है, समझ रही हो। तो अब जो है कि हाँ, जिस किसी को कोई भी सवाल पूछना है पूछिए। पूछो, हंस रही हो का है? नहीं सवाल पूछो। अच्छा मैंने जो बताया है सही बताया, समझ में कुछ आया? आगे और सुन लो, कुछ हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक फरिश्ता है जो हर इंसान की पेशानी को पकड़ा हुआ है। मतलब ये देखो, ये आगे का बाल जो होता है ना, इसे पेशानी कहते हैं बेटा, जहां से बाल जमना शुरू होता है, ठीक है, उसे पेशानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशानी कहते हैं। यहां से बाल देखो, बाल यहां से जम रहा है ना, तो किसी के बाल नीचे से थोड़ा सा जमते हैं, किसी के बाल ऊपर थोड़ा सा हट के जमते हैं। जिसे हमारे मोहल्ले में मिजान है, मिजान का बाल तो पूरा ऊपर से ही है, पूरा लगता है कि फ्लैट है। तो कुछ लोगों के बाल, तो बेटा इसको पेशानी कहते हैं, समझ रही हो, इसको पेशानी कहते हैं। 4 अंगुल के बराबर, 4 उंगलियों की चौड़ाई के बराबर जो होता है उसे पेशानी कहते हैं। देखो इधर देखो, ये पेशानी है, समझ रही हो, पेशानी, जिसको बेटा हम माथा कहते हैं, पेशानी। सुनो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक फरिश्ता है जिसने तुम्हारी पेशानी को पकड़ा हुआ है। जब तुम अल्लाह के लिए तवाज़े करते हो तो वो तुम्हें सर बुलंद करता है, और जब तुम अल्लाह के सामने तकब्बुर करते हो यानी घमंड करते हो तो वो तुम्हें मार देता है। और 2 फरिश्ते तुम्हारे होंठों पर हैं, 2 फरिश्ते तुम्हारे होंठों पर हैं, सुनो पर हैं। वो इसलिए क्योंकि जब तुम मुंह से कहते हो, होंठों से मिला कहते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बाद जो दोनों होंठ जो होते हैं, जो मिलते हैं, मीम जो कहते हो मोहम्मद, तो दोनों होंठ मिलते हैं, तो दोनों फरिश्ते दोनों होंठों पे आकर लग जाते हैं। सुभान अल्लाह, ये है ये चीज नहीं, रसूलुल्लाह नहीं है, रसूलुल्लाह नहीं बेटा। रसूलुल्लाह अगर कहोगे ना तो रशल का माना दूसरा हो जाएगा। रसूल जो है ना वो लफ्ज़ रा सीन लाम रसल से होता है। रसल का मतलब होता है मैसेज, कोई संदेश, अरबी में कहते हैं रसल। फरिश्तों को भी रसूल कह सकते हैं, लेकिन नहीं कह सकते, लेकिन कहेंगे नहीं, क्योंकि रसूल यहाँ पे बमाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और बाकी और दिगर है। और वो तो फरिश्ते तुम्हारे होठों पर हैं, वो तुम्हारे लिए सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हैं। और एक फरिश्ता तुम्हारे मुंह पर है, मुंह पर है, वो तुम्हारे मुंह में सांप को दाखिल होने नहीं देता। अल्लाहु अकबर। एक फरिश्ता तुम्हारे मुंह पर है, अगर वो फरिश्ता हट जाए ना तो सांप मुंह में चला जाए। बात समझ में आ रही है? वो फरिश्ता तुम्हारे मुंह पर मुकर्रर है, वो तुम्हारे मुंह में सांप को दाखिल नहीं होने देता। और 2 फरिश्ते तुम्हारी आंखों पर हैं, आंखों पर हैं। देखो कितने फरिश्ते हैं, गिनो, आंखों पर हैं। हर आदमी पर ये 10 फरिश्ते हैं, हर आदमी पर ये 10 फरिश्ते हैं। अब समझ में आया कि एक नेकी करने पर 10 नेकियां क्यों लिखी जाती हैं? आए हाय, जब हम एक नेकी करते हैं तो हमारी आंखें भी नेकी करती हैं, तो आंखों के फरिश्ते भी जुड़ जाते हैं। हमारे कान भी नेकी करते हैं, कानों के भी फरिश्ते जुड़ जाते हैं। हमारे दोनों हाथ भी नेकी करते हैं, दोनों फरिश्ते जुड़ जाते हैं। मतलब कुल मिला के कितने फरिश्ते हो गए? 10। इसीलिए 10 नेकियां। बात समझ आई कुछ? बात समझ आई कुछ? समझ रही हो? तो हाँ, जो है कि 10 फरिश्ते मुकर्रर हैं। रात के फरिश्ते दिन के फरिश्ते पर नाजिल होते हैं। आवाज नहीं। दिन के फरिश्ते पर नाजिल होते हैं क्योंकि रात के फरिश्ते दिन के फरिश्तों के अलावा हैं। हर आदमी पर 20 फरिश्ते हैं। हेलो, हर आदमी पर 20 फरिश्ते हैं, 10 दिन वाले और 10 रात वाले।
अच्छा एक बात बताओ, रात में क्या जरूरत है फरिश्तों की? रात में तो आदमी खर्राटा लेके सोता है, रात में तो कोई अमल करता नहीं इंसान। भाई फरिश्ते किस लिए रखे गए हैं? फरिश्ते किस लिए रखे गए हैं? आपकी ड्यूटी देखने के लिए ना, तो ये चीज है। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं महशर के मैदान में मैं उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है मैं उसको जानता भी हूं, पहचानता भी हूं, वो किस शक्ल का है, उसका नाम क्या है, वो क्या करता है, वो जन्नती है कि जहन्नमी है, मैं सब कुछ जान लेता हूं उसके बारे में। वो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है। अगर कोई चाहता है कि जैसे 1400 साल पहले जितने लोग सहाबा लोग नबी की खिदमत, हमारे रसूल की खिदमत करते थे, काश हमको भी खिदमत करने का मौका मिलता, बात समझो, हमको भी खिदमत करने का मौका मिलता तो उसको चाहिए कि वो दुरूद पाक पढ़े।